آج ہم مومن نہیں ہیں، اسلام کے تو ماننے والے ہیں لیکن ایمان ہمارے اندر نہیں ہے۔ آج ایمان سے ہم کوسوں دور ہیں۔ الا الذین آمنوا، ایمان لے کر کے آ جائیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ بتاؤ کہ مچھلی کہاں رہتی ہے؟ آپ کہیں گے مولانا صاحب مچھلی پانی کے اندر رہتی ہے، اور آپ تو بنگال کے لوگ ہیں، بنگالی تو بغیر مچھلی کے رہ نہیں پاتا ہے۔ آپ کو اچھے طریقے سے معلوم ہے مچھلی زمین پہ نہیں رہتی ہے، مچھلی ہوا میں نہیں اڑتی ہے، مچھلی آپ کی جیب میں نہیں رہتی ہے، مچھلی پانی کے اندر رہتی ہے۔ اور اگر مچھلی کو مارنا ہے تو اس کو مارنے کے لیے پانی سے باہر نکال دو، مچھلی آٹومیٹک تڑپ تڑپ کے بلک بلک کے مر جائے گی۔ اس کو گولی مارنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو چاقو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تلوار مارنے کی ضرورت نہیں ہے، بس مچھلی کو پانی سے باہر نکال دو، مچھلی اپنے آپ آٹومیٹک تڑپ تڑپ کے مر جائے گی۔ اب میں جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اپنے دلوں کو تھام کر کے سنو۔ جس طریقے سے مچھلی جب تک پانی کے اندر رہتی ہے زندہ رہتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو مچھلی کی زندگی بنایا، پانی کو اللہ نے مچھلی کی لائف بنا دیا، جیون بنا دیا۔ جب تک مچھلی پانی کے اندر رہتی ہے زندہ رہتی ہے، اور جب پانی سے نکل جاتی ہے مر جاتی ہے۔ یہی مثال ایک مومن کی ہے، جب تک مومن ایمان کے اندر رہتا ہے، زندہ رہتا ہے، کامنان رہتا ہے، کامیاب رہتا ہے، نمازی رہتا ہے، نیک رہتا ہے، دیندار رہتا ہے، اور جب یہی مومن ایمان سے نکل جاتا ہے دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ جب تک ایمان میں ہے مومن کامیاب ہے، مومن فلاح پانے والا ہے، مومن ستارے اعظم ہے، اور جب ایمان سے نکل جاتا ہے وہی اس کا انجام ہوتا ہے جو انجام اس مچھلی کا ہوتا ہے جس کو تالاب سے پانی سے نکال دو، یعنی وہ تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے۔ یہی حال ایک مومن کا ہوتا ہے۔ الا الذین آمنوا، پہلی چیز ایمان لے کر کے آ جائیں۔ دوسری چیز وعملوا الصالحات، صرف ایمان لے کر کے آ جانا اور صرف کلمہ پڑھ لینا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور یہ سمجھ لینا کہ صحابہ مسلمان ہو گئے، اب نماز کی ضرورت نہیں ہے، اب روزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں یہ آپ کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ اللہ نے ایمان کے فوراً بعد نیک عمل کو جوڑ دیا ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ آئے لوگوں تمہیں نیک عمل بھی کرنا پڑے گا۔ فجر کی کڑکڑاتی سردی میں صبح اٹھ کر وضو کرنا پڑے گا، اگر گرم پانی نہیں ہے، ٹھنڈا پانی برف سا پانی ہے، اس پانی میں بھی تم کو وضو کرنا پڑے گا۔ رات میں بیوی سے بستری کی ہے، ملاقات کی ہے، صبح فجر میں آنکھ کھل جاتی ہے، اٹھنا پڑے گا، گرم پانی نہیں ہے، ٹھنڈے پانی سے ہی غسل کرنا پڑے گا، لیکن فجر کی نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہونا پڑے گا۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، گرمی کی چلچلاتی دھوپ ہے، گرمی کی سڑی گرمی ہے، میرے بھائیوں تمہیں کھیت میں کام کرنا ہے، بھٹی میں کام کرنا ہے، فیکٹری میں کام کرنا ہے، اور یہ سوچو چلو گرمی زیادہ ہے روزہ چھوڑ دیتا ہوں، کھیت میں کام کرنا ہے روزہ چھوڑ دیتا ہوں، ابھی آگ کے سامنے کھانا بنانا ہے روزہ چھوڑ دیتا ہوں۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، میرا دین کہتا ہے کہ نہیں روزہ نہیں چھوڑ سکتے ہو۔ اللہ نے اگر مال دیا ہے اور تمہاری مال پر 1 سال گزر گیا ہے اور وہ مال نصاب کو پہنچ گیا ہے تو اس مال پر زکوٰۃ بھی دینا پڑے گی۔ اللہ نے اگر تمہیں مال دیا اور دولت دی ہے تو تمہیں حج بھی کرنا پڑے گا۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل بھی کرنا ہے، نیک عمل بھی انجام دینا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب نبی کا نام آئے تو کیا کہیں؟ آواز نہیں آ رہی ہے، ابھی بھی آواز مجھے اس طریقے سے نہیں آئی جس طریقے سے مجھے آواز سننا ہے، تھوڑا زور سے بولیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ इक़ामिस्सला, नमाज को कायम करना। अल्लाह ने तौहीद के फ़ौरन बाद नमाज का जिक्र किया। मालूम ये चला कि नमाज बहुत बड़ी इबादत है मेरे भाइयों, इतनी बड़ी इबादत है, इतनी बड़ी इबादत है। अल्लाह के नबी ने तो यहाँ तक फरमाया, मेरा जी चाहता है मैं अपनी जगह इशा की नमाज में किसी और को खड़ा कर दूँ और पूरे मदीने की गलियों का चक्कर लगाओ और देखो कौन अपने घरों के अंदर है, कौन नमाज नहीं पढ़ रहा है। जो अपने घरों के अंदर मिल जाए, मेरा जी चाहता है मैं उसके घर को आग लगा दूं। नमाज तो इतनी अहम इबादत है। आज इशा भी हमारी गोल है। रात के 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक मोबाइल चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं। मेरे भाइयों मुझे ये बताओ, जब रात के 2 और 3 बजे तक मोबाइल चलाओगे तो फजर में कैसे आँख खुलेगी? फजर की नमाज सोने में चली जाती है। ज़ोहर की नमाज अपनी दुकान पे, अगर दुकान छोड़ के चले गए हमारे कस्टमर टूट जाएंगे। ज़ोहर दुकान में चली गई। असर का भी यही हाल है। मगरिब चाय के होटलों पर चाय की चुस्कियां लेते हुए कलियाचक के बाजार में, और इशा अपनी फैमिली के साथ, न फजर पढ़ने की तौफीक है, न ज़ोहर पढ़ने की, न असर, न मगरिब, न इशा। मेरे भाइयों हमारा मजहब तो ये कहता है कि हालत जंग में हो, इज़ा कुन्त फ़ीहिम फ़अक़म्त लहुमुस्सलाह। आए लोगों, अगर जंग की हालत में हो, ऐसे मौके पर भी नमाज माफ नहीं है। हर हाल में आपको नमाज पढ़ना है, और नमाज पढ़ना ही नहीं है, अल्लाह के नबी ने तो औलाद को भी नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। फरमाया मुर्रू औलादकुम बिस्सलाह व हुम अबनाउ सब'i सिनीन। ओ लोगों, तुम नमाज पढ़ते हो, नहीं नहीं ये काफ़ी नहीं है। मुर्रू औलादकुम बिस्सलाह, अपने बच्चों को भी नमाज पढ़ने का हुक्म दो। मुर्रू औलादकुम बिस्सलाह व हुम अबनाउ सब'i सिनीन। बच्चा तुम्हारा 7 साल का हो गया है, 7 साल की उम्र हो गई है, अपने बच्चे को भी कहो बेटा नमाज पढ़ो। अपने बच्चे को मस्जिद में लेकर के आओ, अपने साथ नमाज पढ़ाओ। बच्चे की उम्र 7 साल की हो जाए, नमाज पढ़ने का हुक्म दो। कितने साल की? 60 नहीं कह रहा हूं, ये 60 समझ रखा है क्या ये? लेकिन हाँ, ये 60 ही हमने समझ रखा है। जब मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, अब लोग मस्जिद की तरफ जाते हैं। ये 60 नहीं है, ये 7 है। 7 साल के बच्चे हो जाए, नमाज पढ़ने का हुक्म दो। और जब 10 साल के हो जाए, वो रिबूहुम, उनको मारो और मार करके मस्जिद में लेकर के आओ। ये नमाज कोई ऐसी इबादत नहीं, पढ़ लिया तो अच्छा, ना पढ़ा तो भी अच्छा। नहीं नहीं मेरे भाइयों, नमाज को छोड़ देना इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मन तरका सलाता मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र। जिसने जानबूझकर नमाज को छोड़ दिया, नमाज को तर्क कर दिया, फ़क़द कफ़र, काफिर हो गया, इस्लाम से खारिज हो गया, इस्लाम से निकल गया। और सऊदी के उलमा का तो यहाँ तक कहना है, जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता हो उसके जनाजे में भी शिरकत नहीं करना चाहिए। जो नमाजी ना हो उसके घर में खाना भी नहीं खाना चाहिए। अगर बीवी नमाजी नहीं है, शौहर को चाहिए तलाक दे दे, और शौहर नमाजी नहीं है, बीवी को चाहिए खुला ले ले। नमाज इतनी अहम इबादत है मेरे भाइयों, किसी भी हाल में नमाज ना छोड़ो। ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, फ्लाइट में सफ़र कर रहे हो, नमाज उस कंडीशन में भी नहीं छोड़ना है। अगर पानी नहीं है, तयम्मुम कर लो, तयम्मुम करके मस्जिद में आना पड़ेगा, नमाज पढ़ना पड़ेगी। पानी ना होने की सूरत में भी नमाज माफ नहीं, तयम्मुम करके आपको मस्जिद में आना है, नमाज पढ़ना है। जहाँ हो मस्जिद नहीं है वहाँ भी नमाज पढ़ना है। ट्रेन में हो अपनी सीट पर नमाज पढ़ लो, फ्लाइट पर अपनी सीट में नमाज पढ़ लो, लेकिन नमाज हर हाल में पढ़ना है। नमाज आपको पढ़ना ही पढ़ना है। वामिलुस्सालिहात, नेक अमल करना है। वतवासौ बिल हक,
हक बात की दावत भी देना है, हक बात लोगों तक पहुंचाना है। वतवासौ बिस्सब्र, और जब आप हक बात लोगों तक पहुंचाएंगे, जब आप दीन की दावत देंगे, आपको मार भी खाना पड़ेगी, आपको गालियां भी बर्दाश्त करना पड़ेगी, आपकी माँ और बहन को भी गाली दी जाएगी। वतवासौ बिस्सब्र, आपको सब्र का भी दामन पकड़ना है, आपको सब्र भी करना है। मेरे भाइयों, बड़ी मुसीबतें बर्दाश्त करना पड़ती हैं, बड़े बड़े मसाइल को सामने रखना पड़ता है। आप क्या समझते हैं यूपी से यहाँ तक चले आना, आपके सामने 2 घंटे बोल लेना कोई मामूली चीज है? कभी जाके सफर करके देखो, आपको मालूम पड़ जाएगा कैसे कैसे लोगों से वास्ता मिलता है। आज ट्रेन में टोपी लगा के चलना, आज ट्रेन में दाढ़ी रख के चलना बहुत बड़ा मसला है। आज अजीब निगाह से देखा जाता है, कोई और ट्रेन में बुर्का पहन के चढ़ जाए उसको जलील समझा जाता है। आज कोई आदमी दाढ़ी वाला हो और वो ट्रेन में सफर करे, मेरे भाइयों, बड़ी हैरत की निगाह से देखा जाता है। और आपको वो मुंबई का मामला मालूम होगा, तकरीबन 4 महीने पहले का मामला मालूम होगा। एक आदमी जयपुर से मुंबई जा रहा है और एसी के 3rd क्लास में बैठा हुआ है, उसकी दाढ़ी है, मुसलमान है। एक पुलिस वाला उसको शूट कर देता है और ये कहता है भारत में अगर रहना है तो भारत माता की जय का नारा लगाना होगा, वंदे मातरम का नारा लगाना होगा। मेरे भाइयों, आज ये हालात है, लेकिन मैं आपके मन से ये पैगाम देना चाहता हूँ, हमें अपने वतन से मोहब्बत बहुत ज्यादा है, हमें इस भारत से बहुत प्यार है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि भारत माता की जय कहो, हम नहीं कहेंगे। कोई अगर ये कहे वंदे मातरम कहो, नहीं कहेंगे। मेरे भाइयों, में मोहब्बत तो अपने वतन से बहुत ज्यादा है। शायर कहता है, मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूं, लेकिन मैं तुझे खुदा मानूं ये इम्कान नहीं है। आए हिंदुस्तान की सरजमी, हम तुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन हम तुझे सजदा नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी पेशानी, हमारा माथा सिर्फ एक रब्बे जुल जलाल के सामने झुकता है। हम तुझसे मोहब्बत बहुत करते हैं और मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, हमारी मोहब्बत पर शक ना करो, हमारे देश प्रेम पर शक ना करो। अगर